That's carbon. Yes, sir. I'm just gonna do it on a very higher and research level of scale so that you will be able to grab whatever the conditions over the time being with respect to your class 10th. Got it? So irrespective of your class, I'm just gonna do it on a very high level of scale. So I think we are just waiting for few minutes so that everyone could join. I hope most of the people have joined right now. So I think we should continue over. Got it? Wait for few minutes only. I'm just gonna start it. Is the screen visible to all of you? Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. What I was telling you, this is that of your Selena. Class 8th Selena के book से करेंगे. I think it is most reputed book. Got it? Carbon. Everybody knows. Uh, you can visualize the chapter starting from. Oh, is regularly entering. Starting from this chapter, you can watch out. Chapter belongs to your carbon along with its compounds. स्टार्टिंग में अगर देखें तो जस्ट इंट्रोडक्टरी फेज है occurrence of carbon. Got it? There lies the occurrence of carbon. Thereafter, there lies some compounds associated with carbons. Thereafter, the topic that it can lead to, which is organic chemistry. Got it? It can lead to organic chemistry. I think organic chemistry and their derivatives. These all facts are there that we are going to do right now. So before starting, we should have a preliminary grasp over the topic carbon, over the element carbon. तो इस चैप्टर पर आने से पहले थोड़ा थोड़ा प्रिलिमिनरी नॉलेज होना चाहिए. तो सबसे पहले उसको करके चलते हैं. देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑन दिस चैप्टर. सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स मूव ओवर. Let us move over right now your carbon chapter. This is your carbon chapter. Based on the above analyzation, देखते जाना. कार्बन के बारे में कोई थोड़ा सा भी नॉलेज अगर रखता हो तो बताओ. एटॉमिक नंबर. टेल मी. 6. Atomic number 6. Atomic number will be 6. Six. Starting from your hydrogen, helium, thereafter comes lithium, beryllium, boron, carbon. So carbon is at 6th. So I can say, being its atomic number 6,
You could analyze over the fact. 10 को। हाँ, its atomic number is 6. Got it? एटॉमिक नंबर 6 होने के साथ साथ इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी शो करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर कार्बन को देखा जाए तो कार्बन जनरली सॉलिड स्टेट में अकर करता है। दैट मीन्स कि आइदर यू सेलेक्ट और आइदर यू से इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फुलरेन, किसी का भी नाम लें तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन जो अपना एग्जिस्टेंस शो करता है वो सॉलिड स्टेट में शो करता है। तो based on the above data, we are having six, we are having three isotopes of carbon possible. देखते जाना। Any element can be represented as Z, X, A, where Z stands for atomic number, A stands for mass Atomic number, mass. mass number, not atomic mass but mass number. Uh, if I write your element carbon, then we are having three cases. C612 होगा, 13। 6 6 13, देयर आफ्टर कम 6 6 14। इस केस में अगर देखो तो ऑब्जर्व अगर करो तो तीनों ही केस में देखो एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? सेम 6 दिख 6। रहा है, 6 दिख रहा है। बट एटॉमिक मास के बारे में अगर डिस्कस करें तो देखो कितना दिख रहा है? फर्स्ट में 12, सेकंड में 13, फोर्थ थर्ड में 14। तो इस केस में क्या हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वी आर हैविंग थ्री कंडीशंस इन विच कार्बन कैन एग्जिस्ट, but in all the above conditions we are having its atomic number only 6. Either you select the first one, or you select the second one, or you select the third one. In all the above cases we are having atomic number of all these three types of carbon as 6. However, mass number varies. In first carbon we are having 12, second carbon we are having 13, and the last one we are having 14. So this is what we call isotopes. सो इफ somebody ask you, अगर कोई तुमको पूछता है कि कौन कौन सा आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पॉसिबल है, तो क्या क्या बोलेंगे? C612, C613 एंड C614। दिख रहा है ना? आई थिंक ये तो समझ में आ गया क्योंकि देर आर बेसिकली थ्री isotopes of carbon which are possible. Got it? So these are what we call here isotopes of carbon, isotopes of carbon. So basically there are three isotopes of carbon, C612, C613 एंड C614। अब आता है इसके अरेंजमेंट के बारे में। थोड़ा सा अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं। देखो तो कार्बन एटम है ना, तो सिंपल सा बात है कि एटम है तो इट विल हैव इट्स न्यूक्लियस होगा। अगला सेल का नाम बताओ क्या होगा? के सेल होगा, होगा ना? अगला यस सर। सेल का नाम बताओ? एल सेल होगा। यस नेक्स्ट सेल विल बी सर। योर एम सेल होगा। दिस इज यस व्हाट यू कॉल हियर न्यूक्लियस। एलिमेंट। क्योंकि एटॉमिक नंबर देखो तो अगर बोल दें हम लोग एटॉमिक नंबर को एनालाइज करके देखें तो एटॉमिक नंबर तो 6 है, इसका मतलब 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? 6। 6। प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 6। सो आई कैन राइट हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बीइंग 6। अच्छा, अब सवाल उठता है न्यूट्रॉन्स कितना होगा? न्यूट्रॉन के प्लेस को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है? अब वो तुम लोग खुद डिसाइड करके बताओगे कि वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है, वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। 6 7 तो 8। देखते वेट आई एम जस्ट गोना डू, वेट वेट अ सेकेंड। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ तो? एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ठीक है? और ये बेसिकली क्या मीन करता है? नंबर ऑफ Neutron. प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग देख लें मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ तो? ए से ए। रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ तो? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो आई कैन से हियर पी प्लस एन को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि मास नंबर इज बेसिकली व्हाट? ए, एंड एटॉमिक नंबर इज व्हाट? बेसिकली जेड, ठीक है? एटॉमिक मास जो है यानी मास नंबर जो है वो पी प्लस एन है, और एटॉमिक नंबर क्या है? ओनली पी है। तो अगर हम लोग को, अगर अपने को मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो कैसे पता करेंगे बताओ तो? A minus ए Z. माइनस बी।
हाँ a माइनस p होगा ना। तो इफ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ if you have to find out number of neutrons will be a minus z होगा ना, क्योंकि z क्या है अपना, एक मिनट, हु इज दिस, एटॉमिक हाँ, जस्ट टेल मी ओवर हियर, नंबर ऑफ a क्या है बेसिकली अपना, एटॉमिक मास मास है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, नंबर hell is this, so a is what, atomic mass, z is what, atomic number, z stands for p and a stands for both p P and प्लस n. So we have to find out n basically here. Who the hell is this guy? If you have to find out number of neutrons, then how we can justify here number of neutrons? That means n will be given by a minus z. So this is the particular expression for finding the number of neutrons. तो अब देखते जाना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा हमको एक चीज और बताओ, क्या यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को रखा जाता है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो बताओ, तो यहाँ पे मेरे पास तीन तीन आइसोटोप्स पॉसिबल है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, इसका मतलब जेड का वैल्यू सेम है, ठीक है। ए का वैल्यू डिफरेंट है, ए का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ए का वैल्यू अगर डिफरेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए विल बी गिव, ए इज डिफरेंट, सो ए इज गिवन, गॉट इट हियर, ए इज गिवन इन ऑल द थ्री केसेस, गॉट इट, and z is also given. So for every case, if we have to find out the number of neutrons, then the possibility rising for the number of neutrons will be, tell me here, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा फर्स्ट वाले कार्बन के लिए, C612 के लिए क्या होगा, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Six. कितना हो जाएगा बताओ, a माइनस जेड विच विल बी 6। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गया कि मेरे पास 6 आ सकता है, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताओ हमको सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, इस सेकेंड वाले के लिए कितना होगा पॉसिबिलिटी, 7 हो जाएगा, Seven. होगा। हाँ, तो इस सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, 7 का पॉसिबिलिटी आ जाएगा। थर्ड वाले, ये जो थर्ड वाला जो आइसोटोप ऑफ कार्बन है, थर्ड वाले के लिए कितना आएगा पॉसिबिलिटी, एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कितना हो जाए बताओ, एट 8 होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी आर हैविंग 3 आइसोटोप्स, और तीनों ही आइसोटोप्स जो है कार्बन का है, ये नेचर में पाया जाता है। अब सवाल उठता है सर, कि तीनों आइसोटोप्स नेचर में पाया जाता है, तीनों को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक और बात होता है कि एक्चुअली में व्हाट वी आर सेइंग हियर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6 इन ऑल द थ्री केसेस, एटम्स बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट डिड आई से, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसका मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, होगा, क्योंकि यस चार्जेस अगर अगर कोई भी एक कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा, चार्जेस डेवलप हो जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, अगर प्रोटॉन्स का नंबर 6 है तीनों ही केस में, तो तीनों ही केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 6 होगा, होगा ना। अब हमको बताओ, इसके बाद अब एक चीज और हमको बताओ कि ये तो न्यूक्लियस रहा अपना, दिस इज न्यूक्लियस, के सेल, गॉट इट, अगला एल सेल, अगला एम सेल, होगा। तो हमको थोड़ा सा बताते जाना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 6 आएगा, इतना तो कंफर्म है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल अरेंजमेंट कैसा होगा, यानी फर्स्ट वाले सेल में कितना जाएगा, एक के सेल का कैपेसिटी कितना का बताओ जल्दी बोलो, टू इस, हाँ, 2 का कैपेसिटी, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये देयर विल बी 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइग इन के सेल, होगा। अगले सेल में देखो तो कितना जाएगा, अगले सेल का कैपेसिटी 8 का होता है, बट अपने पास कितना अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स रहा अब, आउट ऑफ Four. 6 दो तो जा चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो जा चुका है, तो बताओ अपने पास कितना रहा, 4 का रहा, इसका मतलब 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल लाई इन द नेक्स्ट ऑर्बिट। अब बताएं, इसको अगर एनालाइज करो तो इसमें बताओ टोटल कितना ऑर्बिट का यूज पड़ा, एक तो के का, दूसरा एल का। तो इस केस में क्या होगा अपना, इस केस में अपने पास अल्टीमेट सेल यानी वैलेंस सेल क्या होगा बताओ, खाली And नहीं 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 नहीं, वेट अ सेकेंड, यू जस्ट वॉच ओवर व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज न्यूक्लियस नो डाउट, गॉट इट,
and this Yes. is what? K cell, and this is what you call L cell. For this condition over here, ये जो सबसे बाहर वाला सेल है, इस सेल का तो कोई यूज नहीं पड़ा, इस सेल हम्म, तो इस सेल का तो कोई यूज नहीं पड़ा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो वैलेंस सेल है वो कौन सा सेल है? एल वाला। एल वाला क्या है? वैलेंस सेल है। तो फिर पेनल्टीमेट सेल कौन है फिर? ये K. अंदर वाला होता ना। K. अगर वैलेंस सेल होता तो अल्टीमेट सेल ये, पेनल्टीमेट सेल ये, और तीसरा वाला क्या हो जाता? एंटी पेनल्टीमेट सेल। इस वाले ऑर्बिट का तो कोई यूज नहीं पड़ा, तो आई कैन से यहाँ पर इसको रिमूव कर देना चाहिए, होगा। इसका मतलब अब बताओ, मेरे पास दो ही ऑर्बिट है, कौन कौन सा? एक तो के, दूसरा एल। तो हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी कितना है, बताओ तो। 4। हाँ हाँ, वैलेंस सेल। दूसरा नाम बताओ, अल्टीमेट सेल। Ultimate. हाँ, अल्टीमेट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 4। 4। ठीक है। और जो तुम्हारा पेनल्टीमेट सेल है, यानी उसके अंदर वाला सेल, पेनल्टीमेट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 2 हो 2। जाएगा, होगा। होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी 2,4। Yes. होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन विल बिकम 2,4। सो आई कैन राइट ओवर हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4। लेकिन ये तो था ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलते हैं हम लोग सेल के ऊपर। बताओ तो कौन कौन सा सब सेल होता है? एस, पी, डी और एफ। होगा। क्या क्या बोले? एस, पी, डी और एफ, होगा ना। एस, पी और डी और एफ, अरे सार, प्राइमरी, होगा, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। दिख रहा है क्या? सार, प्राइमरी, Yes. डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, एस, पी, डी, एफ। चार ऑर्बिटल्स होता है, होगा। अब देखना, Yes. हम कार्बन के इस 6 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को करके दिखा रहे हैं। पहला सेल बताओ तो क्या है? सबसेल एस। पी का कैपेसिटी बताओ कौन सा, कितना है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, जाएगा ना। फर्स्ट यस। वाले सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, कैसे कैसे? अपोजिट स्पिन से, यस। दोनों अपोजिट स्पिन से जाएगा। अब बचा अपने हम्म। पास कितना? टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा। बचा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा। फर्स्ट Yes. वाला तो जा चुका है, एस सबसेल में दिख रहा है, अपोजिट स्पिन से। अब बचा अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कहाँ का था? 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का था, बताओ? L. पेनल्टीमेट सेल का। पेनल्टीमेट एल। सेल का 4 नंबर। हाँ हाँ, एल का। एल का यू कैन से, या अल्टीमेट। वैलेंस है, हाँ, अल्टीमेट सेल का। अल्टीमेट सेल का था। अब बताओ इसका अरेंजमेंट अगर करके दिखाएं तो 4 जाएगा, 4 तो जाने वाला है। तो बताओ तो, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, याद आया क्या? अपोजिट स्पिन यस। वाला इलेक्ट्रॉन्स सबसे, सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, अकॉर्डिंग टू होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में जाएगा? इस पीएक्स में। ये तीन जो सबसेल है, इसका नाम देख लेना, पीएक्स, पी वाई पी वाई पी एंड जेड। पीजेड। गुड। ई हु इज, अच्छा, इज दिस वन, पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था अपने पास, बताओ तो? 4 को भेजना था। और तो फर्स्ट वाले में गया, 1 गया, 2 गया, अगला कहाँ जाएगा बताओ? सेम स्पिन वाला इसमें जाएगा, यस। 3। एक और बचा है अभी, बताओ अब क्या? अरेंजमेंट हो चुका है तीनों ऑर्बिटल्स में, पीएक्स पीवाई पीजेड में एक एक जा चुका है। अब अपने पास और कितना बचा है? 4 में से 3 तो जा चुका है, कितना बचा? एक एक्स्ट्रा वन। बचा। अब बताओ, अपोजिट स्पिन से जाएगा यहाँ पर, जाएगा ना। यस। तो ये था ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन। दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड ग्राउंड स्टेट। स्टेट। हाँ, ये ग्राउंड स्टेट का कहानी चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा? तो देखते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही होगा। ये जो ऑर्बिटल्स है, इसको वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कौन सा था ये? एस ऑर्बिटल था, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी पीजेड। जेड। पी एक्स, पी वाई एंड पीजेड। तो चलते हैं यहाँ पर। चल रहा है। सबसे पहले तो सेम स्पिन का जा रहा है, ठीक है।
अब बताओ हमको Yes. अब बताओ हमको कि ये ये तो एक्साइटेशन कर चुका है, ठीक है, इसका है। तो अब हमको बताओ कि ये वाला एक्साइटेशन करके कहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पर जाएगा इस वाले में, Py. और ये वाला यहाँ पे आएगा, आएगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ बताओ अब मेरे पास एम्प्टी स्पेसेस कितना रह जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, दिखा क्या? तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में कार्बन कितना एम्प्टी स्पेस शो कर रहा है? 4 होगा क्या? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट Yes. में एम्प्टी स्पेसेस कितना शो करेगा? 4 शो करेगा। Yes. तो आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर दिखाए कार्बन के, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नरिंग करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और चूंकि कॉर्नरिंग करके दिखाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अब बताओ क्या कार्बन को अपना ऑक्टेट को भी फिल अप करना है? फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या दिखा रहा है ये? अपना 4 एम्प्टी हैंड्स को दिखा रहा है। तो अब हमको बताना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिक्वायर्ड होगा इसको फिल अप करने के लिए कितना हो जाएगा? 4 हाँ 4 होगा। तो 4 तो कोई दूसरा एलिमेंट आकर के देगा ना। Yes, sir. तो हर एक कॉर्नर पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई हो गया। अब बताओ ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आया है वो एटम इसके साथ शेयरिंग करेगा, हम लोग बोल सकते हैं शेयरिंग के कारण बॉन्ड फॉर्म होगा। और एक्चुअली में ये शेयरिंग के कारण बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हम लोग बोलते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज व्हाट वी कॉल कोवेलेंट बॉन्ड। सो आई कैन से कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और चीज बता देते हैं कि ये जो दो डॉट्स को दिख रहा है इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही ज्वाइन कर देंगे इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म, टेल मी, carbon will form these 4 bonds. This is what we know, this is what we say carbon shows tetrahedral structure. What did I say? Carbon shows tetrahedral structure. Structure. So I can say here carbon shows tetrahedral structure. Tetrahedral structure. अब एक और चीज आता है, ये जो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, ये दिख रहा है क्या? हर एक बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है उसका मेजरमेंट है 109.5, 5. 109.5 डिग्री। क्या बोले? ये जो, हाँ 109.5. हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड एंगल, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड एंगल फॉर्म्ड बाय कार्बन इफ इट इज लाइंग इन आइसोलेटेड स्टेट। अगर ये आइसोलेटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें इसके अंदर बॉन्ड एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 109.5। अब बताओ सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कार्बन एग्जिबिट करता है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखना ध्यान से, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट था ना, सारा का सारा ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। इस कारण से इसके पास एक स्पेशल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्यों शो करता है ये? बताओ क्यों करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, गॉट इट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण इसका वैलेंसी भी बताओ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। Yes, sir. Valency of carbon will be 4. 4. So I can say valency of carbon is basically 4। इस नेचर के कारण चूंकि कार्बन का वैलेंसी कितना हो रहा है? 4 हो जा रहा है। आई कैन से कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन इज Tetravalent. टेट्रावैलेंट इन नेचर। हाँ, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। दैट मीन्स कार्बन shows tetravalency, carbon shows tetravalency, carbon has tetrahedral structure. These are the two basic properties of carbon over here. Got it till here? next topic comes next topic comes out कि ये क्या शो करता है। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी है, टेट्राहेड्रल वैलेंसी भी है, ठीक है, टेट्रावैलेंट इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं You know, high electron affinity. What did I say? High electron affinity.
what did I say? High electron affinity. Affinity. High electron affinity. इस केस में क्या होता है, ये किसी भी जो नेबरहुड में एटम है, नेबरहुड में एटम है, उसको ये इजिली अट्रैक्ट कर पाता है, इजिली ग्रैब कर लेता है अपने अंदर। तो इससे क्या होता है, ये लॉन्ग लॉन्ग चेन्स को फॉर्म कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर एटम्स, अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है तो कार्बन खुद से खुद का लिंकिंग शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस केस में उसको हम लोग बोलते हैं catenation property of carbon. This is what we call catenation property of carbon. So our next topic is here catenation. Catenation property of carbon. Catenation property of carbon. So how will you define the term catenation property of carbon? Self linking capacity of सेल्फ carbon. लिंकिंग। हाँ, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन। अब देखते जाना, किसी भी कार्बन को ले लेते हैं, एक कार्बन एटम को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कार्बन एटम को सेलेक्ट करते हैं, क्या ये टेट्राहेड्रल वैलेंसी शो करेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी शो करेगा। चारों बॉन्ड्स को हम लोग दिखा रहे हैं, दिख रहा है, कार्बन का चारों बॉन्ड्स को दिखा रहे हैं। अगला कार्बन को लेते हैं, बताओ ये भी चार बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। इस वाले कार्बन का देखना, एक बॉन्ड तो इसके साथ फॉर्म हो गया, बाकी और तीन बॉन्ड बचा ना, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। यस सर। इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, इसी कार्बन के साथ, और कितना बॉन्ड्स बचा, तीन और बॉन्ड तीन। बचा, क्योंकि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, फोर बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है ना। कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स। तो इस फर्स्ट वाले कार्बन को देखो, इस फर्स्ट वाले कार्बन का एक बॉन्ड पहले एम्प्टी था, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। इस वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट बॉन्ड इस कार्बन के साथ जा चुका है, तो अब बचा क्या, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगले कार्बन को वापस से लेते हैं, वापस से। अब इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस थर्ड वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो, क्या जैसे ही इसके साथ लिंकअप हुआ, ये बॉन्ड तो चला गया। अब हम्म, कितना बॉन्ड बचा इसके पास, और तीन। तीन तीन। बॉन्ड बचा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर फिर मान लो कोई दूसरा कार्बन आता है, इसके तो साथ चल गया इस तो ये कार्बन के आते ही बताओ, एक बॉन्ड इससे ऑटोमेटिकली अटैच हो गया ना, और कितना बॉन्ड्स बचा, टेल मी, और कितना बॉन्ड्स बचा, और तीन। थ्री बॉन्ड्स तीन। बचा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या ये लगता है तुमको लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है? Yes, Do you sir. Yes, think sir. carbon can form long chains? लॉन्ग So लॉन्ग। this long chain forming capacity of carbon को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट कम्स आउट कि लॉन्ग कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी है लॉन्ग लॉन्ग चेन्स को फॉर्म करने का। तो उससे क्या, ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, कैसा, मतलब रिजेम्बलेंस कैसा है। तो अगर हम लोग डिस्क्राइब करते चले जाएं, तो देखते जाना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो आ गया समझ में। अब देखना, एक कार्बन को लेते हैं, ठीक है, देखना क्या ये बॉन्ड फॉर्म किया, अगला बॉन्ड फॉर्म हुआ, अगला बॉन्ड वापस से फॉर्म हुआ, अगला अगला बॉन्ड वापस से फॉर्म हुआ, अगला चलते बॉन्ड हैं। वापस से फॉर्म हुआ। सो आई कैन से कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्ग चेन्स फॉर्म किया जा सकता है। यस सर। हाँ, तो इसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्ग चेन्स के कारण हम लोग बहुत सारा टाइप का कंपाउंड को फॉर्म कर पाए हैं अभी तक, यानी जितने भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, वो लॉन्ग लॉन्ग चेन्स फॉर्म करने के कैपेसिटी के कारण जो यूनिक बिहेवियर है इसके अंदर, कार्बन के अंदर, सल्फर भी एग्जिबिट करता है, लेकिन सल्फर उतना ज्यादा लॉन्ग चेन्स को फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास, कार्बन के पास स्पेशल बिहेवियर था। पहला तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, दूसरा टेट्रावैलेंसी, तीसरा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में चार चार ऑर्बिटल्स एम्प्टी था क्या, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में चार चार ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, देखो ये चारों ऑर्बिटल्स, एस, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, चारों ऑर्बिटल्स क्या है, एम्प्टी है, ग्राउंड फर्स्ट Empty. एक्साइटेशन स्टेट में। इसका मतलब चार चार इलेक्ट्रॉन्स तो ये ऐसा ही ले लेगा, है ना, और अपोजिट स्पिन से लेगा, तो सिंपल सा बात है, कोवलेंसी शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक कम्स कि ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, और अगर लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, तो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चेन्स पॉसिबल फॉर कार्बन।
So types of chain I can say over here. जो बोले Types थे of chains. Types of chains स्ट्रेट चेन that बीच में नहीं बोलना है किसी को भी. Types of chain that it can form. First one comes out to be straight chain. First one comes out to be Straight chain. straight chain. स्ट्रेट चेन बिहेवियर के कारण देखना, ये जो एबव में बनाया है ना ये वाला स्ट्रक्चर, डू यू थिंक दिस इज स्ट्रेट चेन? उधर भी Yes, जाएगा sir. माइनस इन्फिनिटी तक और इधर भी जाएगा पॉजिटिव Plus इन्फिनिटी तक, जाएगा ना? one. उधर माइनस इन्फिनिटी तक और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. तो आई कैन से इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स. तो बिल्कुल उसी को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेते हैं. होगा इसको ही जस्ट हम लोग क्या कर लेंगे, जस्ट वी विल कॉपी इट. वेट अ सेकेंड, we will wait a second, we will just copy it and we will paste over here. So this is what you say straight chain. दिख रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट आता है ब्रांच चेन. नेक्स्ट आता है इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. अब सवाल उठता है कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का कुछ एग्जांपल्स पहले दे देते हैं, फिर चलते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में. एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन. मीथेन देखते जाना. बताओ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा. मिथ है और एन है. स्ट्रेट चेन फॉर्मिंग कंपाउंड, अगर स्ट्रेट चेन कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इट इज जनरली द केस ऑफ. वैसे तो केस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ केस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. जैसे हाइड्रोकार्बन का कौन कौन नाम सुना है क्या? हाइड्रोकार्बन्स, a compound Yes. Yes. consisting of only hydrogen and Hydrogen, carbon. So that's what we carbon. call हाइड्रोकार्बन. Hydrogen. हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगराइजेशन होता है. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. व्हाट डिड आई से? टाइप्स ऑफ Saturated. हाइड्रोकार्बन. हाँ, हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का दो कैटेगरी होता है. फर्स्ट वन इज योर सैचुरेटेड. ऐसे तो हाइड्रोकार्बन्स का अगर कैटेगराइजेशन करें तो एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक. क्या क्या बोले? Yes. एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक. ठीक है, तो उतना हाई लेवल पर तो नहीं लेके जाएंगे अभी, थोड़ा सा लेवल लो रखेंगे क्योंकि तुम लोग क्लास 8 के हो. सैचुरेटेड एच सी स्टैंड फॉर हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन कम्स आउट टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैटेगराइजेशन अल्केन. ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैटेगराइजेशन अल्केन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैटेगराइजेशन होता है अल्कीन और अल्काइन. अल्कीन्स एंड Alkyne. अल्काइंस. अल्कीन्स एंड अल्काइंस. जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन इज 2n+2. नो. जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2. अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n. अल्काइन के लिए हो जाएगा CnH2n-2. CnH2n-2. ठीक है, इसके पहले थोड़ा थोड़ा एक चीज लिख देते हैं हम ताकि तुम लोग को आसान आसान हो. नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 होगा ना, क्या बोले, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा तो उसको हम लोग मिथ के नाम से जानेंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 होगा तो एथ. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होगा तो प्रोप. 4 होगा तो ब्यूट. 5 होगा तो पेंट. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 6 होगा तो बोल देंगे उसको क्या है, हेक्स है. नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होगा तो हेप्ट. Hepta. हेप्ट या फिर सेप्ट, दोनों बोल सकते हैं. 8 होगा तो ऑक्ट. 9 होगा तो नॉन. ठीक है, और 10 होगा तो डेक. So these are the suffixes that are used.
These are the prefixes, in fact, I can say, that are used while naming hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स का अगर नेमिंग करना हम लोग को, तो ये सारा यूज में आता है, ये सारा का सारा प्रेफिक्स आता है यूज में। अब कैसे आता है? अगर अल्केन है, क्या बोले, अगर अल्केन है तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा तो मेथ और इधर का एन, दिखा क्या, मेथ और एन बन जाएगा मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो एथ और इसका एन बन जाएगा, बन ठीक जाएगा, है। बोलो, टेन। इथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 है और अल्केन ग्रुप है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो बन जाएगा क्या, प्रोपेन। प्रोपेन। हाँ, अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो इसका बुटेन। सफिक्स लगा देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे ब्यूटेन। बुटेन। अगर ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो देखो तो अल्केन के केस में क्या है, CnH2n+2 है। अल्कीन के केस में देखो तो क्या लगता है तुमको कि H2n+2 से सिर्फ H2n रह गया है। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, यहाँ पे H में क्या है, 2n+2, यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2n है। इसमें 2n-2 हो गया, मतलब और भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिसीड कर गया, घट गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और घट गया। तो इसमें सैचुरेटेड हम लोग इसलिए भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतना ही होता है जितना कि चाहिए होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स घट जाता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और घट जाता है। यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम का क्वांटिटी घट जाता है, इसमें हाइड्रोजन एटम का क्वांटिटी और भी घट जाता है। ये दिख रहा है ना, 2n-2। जिसका यस मैथ्स सर। थोड़ा ठीक ठाक होगा लेवल का, उसको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, तुमको एक चीज सिंपल सा बात बताते हैं, 2n+2 बड़ा या 2n बड़ा या 2n-2 बड़ा, कौन सा बड़ा? अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो किसको करेंगे बताओ? सबसे टू एन लार्जेस्ट प्लस कौन है टू बताओ? हाँ, सबसे टू एन लार्जेस्ट प्लस कौन है? टू हाँ, सबसे लार्जेस्ट ये वाला होगा, सबसे लार्जेस्ट, यानी फर्स्ट केस में कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये प्लस टू। सेकंड विनर होगा और ये थर्ड विनर होगा। इसका मतलब तुमको लगता है कि यहाँ पे 2n+2 है, इसका मतलब ये फर्स्ट विनर, ये सेकंड विनर और ये थर्ड विनर। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसमें अप्रोप्रिएट है, इसमें उसका कमी है, इसमें और कमी है। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो दो कैटेगरी आता है, एक अल्कीन, दूसरा अल्काइंस। अल्कीन्स एंड अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन, सेकेंड में अल्कीन एंड अल्काइन दोनों। अब देखना, अगर अल्कीन के बारे में बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर 2 है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो बताओ एथ और इन, ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, एथ, इन, इथीन। ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 है तो प्रोप इन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन होगा। अगर अल्काइंस के बारे में अगर देखें, अगर सपोज दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो प्रोप वाइन, जिसको पढ़ रहे हैं ना, डब्ल्यू वाई यानी वाइन, इससे मिल करके बन जाएगा प्रोपाइन, क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपेन। उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 5 है तो पेंट और वाइन इन। क्या बन जाएगा, पेंटाइन, क्या बन जाएगा, पेंटाइंस। याद पेंटा। रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्या बोले, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और अल्काइन में बिटवीन वन पेयर ऑफ कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसका मतलब इसमें अगर दिखाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें एक पेयर ऑफ कार्बन में डबल बॉन्ड, इसमें एक पेयर ऑफ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा। अल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड, इसमें एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें एक पेयर ऑफ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ये तो ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। अब चलते हैं हम यस। लोग यस। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं मीथेन का। मीथेन बोले तो, मीथेन बोले तो, मीथेन मीन्स व्हाट, वन कार्बन। अल्केन, वन अल्केन, कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन ग्रुप। तो चलते हैं इसके ऊपर। सो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन राइट नाउ। नाउ यू टेल मी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 1, विल इट बी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 1। अल्केन का फॉर्मूला बोलो तो, मीथेन हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, बताओ तो इसमें सफिक्स क्या दिख रहा है,
एन N. एन दिख रहा है मीन्स ये क्या अल्केन है. Yes, इट sir. इज व्हाट बेसिकली अल्केन. Alkane. हाँ इट इज व्हाट बेसिकली अल्केन. Again. अल्केन का जनरल फॉर्मूला बताना. CnH2n CnH2n H. plus प्लस 2. 2. हाँ इसका मतलब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 होगा तभी तो वो मिथ कहलाएगा. ये देखो नंबर ऑफ कार्बन Yes. एटम 1 होगा तभी तो वो मिथ कहलाएगा. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा 1. इसका मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम में n के जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग बताओ तो. 1. हाँ 1 लिख देंगे. अगर n का वैल्यू 1 है तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली बताओ तो. 2 4. इंटू एन प्लस टू. 2 इंटू एन प्लस टू. यही ना हाइड्रोजन. सी तो 1 आ गया. एच की जगह अब क्या लिखाएगा बताओ. 2 into 1 4. will be 2 plus 2 4. will be 4. तो इट विल बिकम CH4. इसीलिए हम लोग बोलते हैं मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 होगा. अब Yes, sir. इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं. वॉच ओवर हियर. कार्बन इज दियर. बताओ कौन सा नेचर इसका. पहले तो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग शो करेगा. टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग शो करेगा मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा 4. 4 होगा. अच्छा. और बॉन्ड एंगल कितना होगा कार्बन एंगल के कार्बन कार्बन के बीच में मतलब एक 109.5. बॉन्ड 109 पॉइंट. 5. 5. हाँ 109.5 डिग्री. दिस विल बी द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बॉन्ड्स ऑफ कार्बन. तो दिस विल बी द बॉन्ड एंगल. अब बताना हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है 4 है ना. और बॉन्ड्स भी कितना है अपने पास 4 है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ. हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन जाकर बैठ जाएगा. हाइड्रोजन ऐसे जाकर के बैठ जाएगा और हम लोग बोल देंगे कि CH4 is formed. CH4 is formed. And CH4 is what basically मीथेन. दिखा क्या मीथेन कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर. हमको कोई इथेन का करके दिखा सकता है क्या. दिखाएंगे कैसे, इथेन सर? दिखाएगा कैसे, सही बात है. हम ही दिखा देते हैं बस अपने व्यू को मैच करा लेना. इथेन है. पहले हमको ये बताते जाना कि ये है क्या. क्या ये एन है. Yes, sir. Yes, sir. एन है. एन मीन्स क्या अल्केन. Yes, sir. अल्केन मीन्स Yes. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और अगर सैचुरेटेड Yes. हाइड्रोकार्बन है तो इसका जनरल फॉर्मूला तो यही हो जाएगा CnH2n+2 C2H6. होगा. CnH2n+2. तो Yes, Yes. sir. और एक चीज और देखो प्रेफिक्स कितना है इथ है ना. Yes, sir. Yes, sir. इथ है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो जाएगा 2. इथ के 2. लिए 2. 2 होगा. हाँ इसका मतलब n का वैल्यू 2 पता चल गया तुम लोग को. n का वैल्यू ये जो 2. n है इसका वैल्यू 2 पता चल गया. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होगा. तो इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं. जस्ट लेट मी टेल यू. लेट मी शो यू ओवर हियर. हाँ सो C2H6. सी एन के जगह पे 2H6. 2. एच के जगह पे बताना डायरेक्टली बोल 6. दो 6. 6 होगा. C2H6. अब इसका Yes. स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे. इसके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे. देखो तो कार्बन एटम्स कितना है 2 है. 2 कार्बन एटम्स लिख दिए यानी सेंट्रल एटम हम लोग का 2 है. ये सेंट्रल एटम के साथ ही हाइड्रोजन अटैच्ड होता है. इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट एटम. इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम. दिस इज व्हाट वी कॉल हियर central atom. This is what we call over here Central. central atom. central atom. Or what do we call this one substituent atom. This is what we call here substituent atom. तो हमको अब बताओ कि नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स कितना है 2 है. और वो कौन कौन है कार्बन. दोनों कार्बन को शो कर दिए. अब बताओ इसका एक प्रॉपर्टी होता है ना. उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ कैटिनेशन प्रॉपर्टी. क्या एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाएगा. Yes, sir. नहीं दिखा. बॉन्डेड हो जाएगा बाय बाय सिंगल Catenation. कोवलेंट बॉन्ड. हाँ हर एक कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी नेचर. टोटल नंबर ऑफ फोर बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. जिसमें से Yes. इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड चला गया. इस वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड चला गया कोवैलेंसी में गया ना. तो अब बताओ Yes. मेरे पास कितना बॉन्ड्स बाकी रहा. 3 टोटल bond. नंबर बॉन्ड्स कितना रिमेनिंग रहा 3. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इस कार्बन को देखो सेकेंड Yes, वाले sir. कार्बन का भी 3 बॉन्ड्स Yes. बाकी रहा. तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा. Yes, sir. नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बताओ कितना दिख रहा है. 3. नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस एक यहाँ पे
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 6. और यहाँ पर। टोटल कितना दिखा? 6. 6। और अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है? 6. 6 है। दिखा क्या? अब बताओ Yes, क्या sir. करेंगे हर एक जगह। इसी तरह से सेकेंड्स में हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, मतलब हम कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है? 6। तो हर एक पोर्शन के पास HH. क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा। देखो तो क्या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है ना? स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज प्रोड्यूस्ड। आर It यू एबल टू is. विजुलाइज? Yes, Yes, sir. दिस sir. इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। गॉट इट। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अल्कीन के बेसिस पर। बताओ अल्कीन अगर होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा बिटवीन वन पेयर ऑफ कार्बन एटम्स? कितना बॉन्ड होगा टोटल? Double bond. 2. डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइन अगर होगा तो Triple. ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। दिखाते हैं अल्काइन को, एक अल्कीन को लेके दिखाते हैं, फिर एक अल्काइन को भी लेके दिखा देंगे। उससे पहले एक इथेन तो कर दिए, एक प्रोपेन करोगे क्या तुम लोग? हमको सिर्फ बताते जाना, हमको खुशी मिलेगा। नहीं Yes, कर sir. पा रहा है। ठीक है। प्रोपेन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? Prop 4. नहीं, एन है। एन है मतलब In अल्केन है। alkane. एन मतलब अल्केन है। Yes, प्रॉप sir. है। प्रॉप है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा? 3. मेथ एथ प्रॉप, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा? 3 3. होगा। 10. होगा। अच्छा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सर 3 होगा। ठीक है। इसका मतलब ये चूंकि एन है, चूंकि ये क्या है? एन है, तो इट इज जनरली अल्केन। इट इज व्हाट बेसिकली? अल्केन। अगर Okay. अल्केन है तो हमको थोड़ा सा बताना। एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया? 3 हो गया। और ये है क्या? एन है। एन है मिस अल्केन है। अल्केन है तो जनरल फॉर्मूला बोल देना CN CN. H2N SPN. +2 होगा। Just जिसमें तुमको एन पता चल चुका है। एन इज हाउ मच? 3। सो आई कैन राइट हियर C3। 8. एच कितना बता दो? 8. हाँ, एच विल 8. बी 8। 2 3 जा 8. 6 +2 इट विल बी 8। ठीक है, 8। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बताओ कितना है? 3. Carbon 8. 3। 3. एंड सब्स्टिट्यूएंट एटम इज 8. 8. Hydrogen. 8। 8 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम इज 8। सेंट्रल एटम ये रहा, ये कार्बन सेंट्रल एटम, सब्स्टिट्यूएंट एटम 8। अब दिखाते Hydrogen. हैं इसको करके कैसे फॉर्म होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो पता चल गया कि सर 3 है, और सब्स्टिट्यूएंट एटम कितना है? 8 है। ठीक है, लेट मी शो यू। तो आई कैन शो ओवर हियर। बताओ But सबसे पहले किसको ड्रॉ करेंगे? कार्बन। Carbon. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। 2. सेंट्रल एटम के बारे में पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 3 है। तो तीनों कार्बन्स को दिखा चुके हैं। अब ये एक बिहेवियर शो करता है। कौन सा बिहेवियर बताओ? Catenation. कैटेशन प्रॉपर्टी, जिसके जिसके अंदर ये खुद से खुद को लिंक करेगा। करेगा ना? Self-linking. हाँ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। खुद से खुद को लिंक किया। एक और बिहेवियर कार्बन शो करता है, बताओ क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर Hydrogen. होगा, और टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब हर एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना फॉर्म होगा? 4 4. बॉन्ड्स फॉर्म होगा। चलो अब इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, कार्बन नंबर 1 को। क्या इसका एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया है? और कितना Yes. बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है? और 3 कर सकता है ना? हाँ, तो yes, इसका sir. मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड गया। अब सेकेंड वाले कार्बन एटम को देखो, ये सेकेंड वाला कार्बन एटम को, इसका भी टोटल 4 होता, लेकिन इसका एक बॉन्ड इसके साथ गया, दूसरा बॉन्ड इसके साथ गया, तो 2 बॉन्ड तो निकल गया। Yes, sir. अब कितना बचा? Door. 2 बचा। दोनों बॉन्ड को दिखाना होगा। Yes, sir. दोनों बॉन्ड्स को दिखाते हैं, पहला और दूसरा। अब इस कार्बन थर्ड वाले कार्बन एटम को विजुअलाइज करो। इसका 3. कितना नंबर ऑफ बॉन्ड? हाँ, इसका अब 3 रिमेनिंग है। तो Yes, तीनों ही sir. Yes. बॉन्ड्स को हम लोग दिखा सकते हैं। तीनों बॉन्ड्स को दिखा देते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिखा दिए। अब Yes, sir. बताओ तुम्हारे पास एम्प्टी स्पेसेस कितना है? 8. हाँ, एम्प्टी स्पेसेस कहाँ पर है बताओ? एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ।
एम्प्टी स्पेसेस 8 है, और अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, 8. 8. 8 है। क्या हर एक स्पेस पे इसको पुट कर देना चाहिए? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, थर्ड वाला यहाँ, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एट्थ ईयर। क्या प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है। अब एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे अल्कीन का। ठीक है, किसका? अल्कीन Okay. का। हाँ, एक अल्कीन का करते हैं। अल्कीन जनरल फॉर्मूला बोलना। CN. CnH2n. एन CnH2n होगा ना, CnH2n। इसका मतलब, और एक और प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, स्पेशल प्रॉपर्टी, बिटवीन वन पेयर ऑफ कार्बन एटम देयर Double विल bond. बी द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब तुमसे एक ही चीज पूछते हैं हम, हमको बताना, क्या मीथेन पॉसिबल है क्या? No, sir. मीथेन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा? 1 होगा। मीथेन तो Yeah. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा। जैसा ही C1 लिखेंगे, H कितना जाएगा बताओ? H 2. कितना हो जाएगा? 2n। सी एन की जगह 1, तो H की जगह 2n। तो H की जगह Yes. 2n अगर लेते हैं, 2 × 1 विल बी 2। तो ये तो बन गया CH2। लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है? टोटल 4 फॉर्म करता है। इसका 2 ही बॉन्ड का खपत हुआ है, 2 तो खाली रह गया। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो सी, सपोज दैट 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई कर लिया, ये वाला, ये वाला दोनों हाइड्रोजन एटम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई कर लिया स्पेस को। तो कार्बन तो टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये तो खाली रह गया ना। क्या इसका एग्जिस्टेंस होगा? No, sir. नहीं होगा। सो आई से मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आई कैन से मीथेन विल नॉट एग्जिस्ट। East. अब एथीन पर चलते हैं। एथीन पर देखो, एथीन, एथीन को अगर एनालाइज करें तो बताओ क्या होगा? CnH ट्वाइस S. ऑफ एन होगा। तो सी Yes. कितना बताओ, एन की जगह पे एथ है, C2. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 2। 2. Yes, sir. तो सी C2 टू हो गया। H2. एच कितना हो जाएगा? 4. 4 हो 4. जाएगा। अच्छा, C2H4 आया। सेंट्रल एटम कौन है? सी। अरे ये C. सेंट्रल एटम ये सी, और सबस्ट्रेट एटम 4। तो Oh. Yes. दिखाते हैं, सेंट्रल एटम को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम विल बी, 2 कार्बन को ड्रॉ कर दिए। एच तो 4 है। अब ऑटोमेटिक सा बात बताना हमको कि टोटल हाइड्रोजन कितना है? 4 है ना, और कार्बन 2 है। Yes. हर एक कार्बन के पास कितना कितना हाइड्रोजन जाएगा? दो दो. 2 2। अरे 2 भाई है, 4 टॉफी है, तो सीधा सा बात है, कितना कितना? 2 2। दो. हाँ, तो इसका मतलब एक कार्बन मैक्सिमम दो, 2 हाइड्रोजन ले सकता है। चलो 2 हाइड्रोजन ले लिया। ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन ले लिया, ले लिया ना। Yes, sir. अब हम बताओ, तुम लोग में से कोई हमको बता सकता है क्या हम एक काम नहीं किए? बताओ क्या नहीं किए? वो सर बेस में डबल बाउंड नहीं है. नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले उसी को करना चाहिए। सही था, होगा ना? क्योंकि कार्बन Yes. का सबसे पहले किस, कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आता है? डबल बाउंड. कैटिनेशन प्रॉपर्टी, नहीं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Definition एक property. बॉन्ड तो गया। अब कोई इस पॉसिबिलिटी है क्या? Yes, sir. एक और बॉन्ड होगा तुम्हारे, वहाँ पे। और नहीं नहीं, होगा. तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन था, कंज्यूम हो गया, हो गया ना। कार्बन Yes. टोटल 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, जिसमें से एक कार्बन कार्बन फॉर्म किया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ। एक और बॉन्ड इसको भी फॉर्म करना है, उसी तरह से इस वाले कार्बन को भी एक और बॉन्ड फॉर्म करना है। इसका मतलब अब तो कोई दूसरा आइटम भी नहीं है। तो हम्म. वापस से कौन सा एबिलिटी? सेल्फ Catenation. लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के कारण वापस एक खुद से एक और सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी से अल्किन के केस में क्या होता है? डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रखना, अल्कीन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है। अगर हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना चाहें तो हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस विल बी इन इनॉर्मस एक्सटेंट। तो ये उतनी आसानी से ब्रेक डाउन, इसका बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन
नहीं होगा, लेकिन मीथेन में आसानी से हो जाता है, होगा। यानी अल्केन में आसानी से बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा, अल्कीन में उतना आसानी से नहीं होगा, और अल्काइन में और आसानी से नहीं आएगा। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अगर करें तो सबसे ज्यादा अल्काइन, किस में होगा? हाँ, अल्काइन में जाएगा सबसे ज्यादा, अल्काइन में, फिर अल्कीन अल्केन, में, और उससे सबसे कम किस में होगा? अल्केन। अल्केन में होगा। ये ऑर्डर फॉलो होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ा सा हाई लेवल है, हमको लगता है कि ये करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने देख लिया। एक और हम लोग देखेंगे, एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करने के लिए दिखाते हैं। प्रोपाइन का हमको कोई बताओ तो, या फिर प्रोपीन का ही बताओ, कैसे करोगे? सबसे पहले सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज किया? इन है। इन है मतलब अल्कीन है। यस अरे सर, इन है मतलब अल्कीन है, यस होगा। सर, यस सर। इन है मतलब अल्कीन। अल्कीन है। अल्कीन है। और अगर अल्कीन है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कीन एक्चुअली में तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा तब? सी सी एन एन एच टू एच एन माइनस वो। 2n। हाँ, सिर्फ और सिर्फ होगा CnH2n। तो प्रॉप है तो कितना हो जाएगा बताओ? मेथ एथ प्रॉप, तो 3। 3 कार्बन एग्जिस्ट करेगा। एक यस पेयर सर, के बीच यस। में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कैटनेशन प्रॉपर्टी वापस से शो करेगा। यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा। इस कार्बन के बारे में बताओ तो क्या होगा? 2 बॉन्ड तो गया, बचा तीसरा और चौथा, और यस तीसरा और चौथा को यहाँ पर दिखा रहे, तीसरा और चौथा। इस कार्बन का देखो तो हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड गया, बचा एक बॉन्ड। एक बॉन्ड को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ यस। पर, हाइड्रोजन। इस कार्बन का देखो तो, थर्ड वाले का, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 3 बॉन्ड एग्जिस्ट किया। अब देखो, लगता है तुमको कि सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया। प्रोपेन यस का सर। फॉर्मूला क्या होता है? सी थ्री C3H6। एच सिक्स देखो, सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया ना। फर्स्ट, सेकेंड, यस। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारा का सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो चुका है। ये था कुछ स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करने एलिमेंट्री लेवल पर सीखना जरूरी था। तो ये तो देख लिया तुम लोग, क्या देख लिया? कार्बन को कुछ कुछ स्पेशल स्पेशल बिहेवियर्स। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा बुक लेवल पे, यानी और थोड़ा सा लोअर लेवल पर। कार्बन को तुम लोग को पता है और भी टाइप्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, कौन कौन सा? लिख देते हैं। कार्बन कैन फॉर्म अल्कोहल, फर्स्ट। सेकेंड, अल्डिहाइड। थर्ड, कीटोन्स। फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ, ईथर। सिक्स्थ, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, योर अल्काइल हैलाइड। Alkyl halide. So these were the major compounds that carbon can form. These were the some of major compounds that carbon can form. Got it? यस। अब थोड़ा सा यस। बुक लेवल पर चलते हैं। आई थिंक आई शुड गो ओवर बुक नाउ। तुम लोग के बुक में तो ये गरीबी है, गरीबी अपने चरम पर है। कार्बन देखो क्या करता है, एटॉमिक नंबर 6 डिस्क्राइब्ड, मास नंबर 12, सिर्फ एक ही मास दिया है, वैलेंसी 4, अकरेंस ऑफ कार्बन। अच्छा, ये तो डिस्क्राइब कर चुके हैं ना, इसका स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। यस अकरेंस सर। क्या? बोथ इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। History. फ्री स्टेट में कैसा? इट एग्जिस्ट एज एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर में कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। नेचुरल वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, नेचुरल गैस। एंड व्हाट? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर भी पाया जाता है। यस। ये सेलिना का है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सेलिना का है, ठीक, चलता है इतना। देखना क्या है, फूड न्यूट्रिएंट्स में भी पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च, फैट्स, विटामिन्स, etc. Carbonate and bicarbonate such as chalk, limestone, marbles,
कैलेबाइंस ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का, बस ये फॉर्मूला सब याद रखना है जो एग्जाम में आएगा बुक में। बेकिंग सोडा, Okay. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सेल्स ऑफ मैनी एक्वाटिक एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बोनेट। सेल समझा क्या? जैसे घोंघा देखा है ना तुम लोग, घोंघा वगैरह किससे बना होता है? Hmm. इसी से तो बना होता है। नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क, ये सब में एग्जिस्ट करता है। कार्बन इज बेसिकली अ यूनिक नॉन मेटल with widely different forms and properties. Mankind has known carbon in the form of charcoal and soot. Soot समझते हो क्या होता है? लैंप देखे हो क्या? लैंप पहले जमाने में जो लैंप आता था ऐसे करके, Yes, sir. Yes. अभी भी शायद आता होगा। यहाँ पे ऐसे जलाता होगा, ये ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे वो ब्लैकिश स्ट्रक्चर, ब्लैकिश लेयर फॉर्म होता है। दैट्स व्हाट इज Yes. Yes. बेसिकली सूट, So, उसी को हम लोग बोलते हैं सूट। Although carbon constitute only 0.03% of Earth crust, it forms an enormously large number of compounds. बताए क्यों? दो ही प्रॉपर्टी था, एक तो कैटनेशन, दूसरा radiation, हाँ, tetra, Finish. number is so large than the entire branch of chemistry which we call organic chemistry, that is devoted to the study of organic carbon and chemistry. its compounds. Carbon and its compound, इसका compound means इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कौन कौन सा था जो अभी लिखे? अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बताओ कौन कौन सा था? अल्काइल हैलाइड, ईथर, ये सारा क्या है? उसका कंपाउंड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टर्म गिवन टू द ब्रांच बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड्स आर obtained फ्रॉम लिविंग organisms. In fact, for the convenience of study, all compounds are classified as two classes: organic and inorganic compounds. Organic compound वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना तय है। इनऑर्गेनिक कार्बन होगा, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग है और ये मैन मेड भी है। अच्छा, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन तो सॉरी कार्बन तो होगा ही। कार्बन मेजर कंस्टिट्यूएंट के तौर पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल्स है इसका: नेचुरल एंड मैन मेड यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज स्टार्च, वैक्स, वैक्स कौन सा? पैराफिन वैक्स, स्टार्च एंड वैक्स, विनेगर, अल्कोहल, डाई, डिटर्जेंट, ये सारे चीज में पाया जाता है। नाइलॉन, पॉलिस्टर, जहां देखो सब जगह कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, एवरीवेयर देयर इज कार्बन। ये तो कुछ कुछ समझ में आ गया ना तुम लोग को? Carbon. ये अच्छे से समझ में आ गया। ये हाइड्रोकार्बन, मीथेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन, एक और था साइक्लिक, साइक्लिंग नहीं कहते क्या? साइक्लिक चैन। No. इसमें Yes. एक चीज बचा रह गया था, साइक्लिक चैन ना। कर दी. स्ट्रेट चैन था, एक और था ब्रांच चैन, एक Branch और था chain. साइक्लिक, एक और था साइक्लिक। एक मिनट, उसको कर ही देना चाहिए हमको लगता है। आई थिंक सेकेंड वाला क्या था? Yes. हाँ, सेकेंड क्या होगा बताओ? Branched chain. सेकेंड वाला हो जाएगा Branch. ब्रांच चैन। सेकेंड इज ब्रांच चैन, ब्रांच चैन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। इसका एग्जांपल, जैसे सपोज दैट कार्बन चल रहा था, कार्बन 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 कार्बन, दिखा क्या? अगर यहाँ पर ही Yes. ब्रांचिंग हो जाए तो दिस विल अगेन कंटेन थ्री बॉन्ड, होगा हर एक के पास थ्री थ्री, हर एक के पास थ्री थ्री या फोर फोर, बोलो। 4 4. फोर फोर। हाँ, तो इसका कुछ एग्जांपल्स है ब्रांच चेन का: नियोपेंटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, नियोपेंटेन, एन ब्यूटेन। Hmm. इसके बाद आइसोब्यूटेन। these are some of the branched chain structure of कार्बन। कुछ और भी होता है, जैसे हम लोग लिख लें 2 2 डाई मिथाइल ईथर, 2 2 डाई मिथाइल ईथर, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, ट्राई मिथाइल, 4 5 डाई क्लोरो डेकेन।
ये सारा का सारा क्या है, अपना ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है साइक्लिक चेन, नेक्स्ट आता है थर्ड साइक्लिक साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन हाँ, C6H6 सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। बोले तो C6H6। 6 कार्बन भी 6 होगा, देखना इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला बिहेवियर कैटनेशन, तो कैटनेशन शो करेगा आपस में, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन भी 6 है, तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा। हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो बॉन्डिंग का अगर बात करें तो अल्टरनेट बॉन्डिंग चलता है इसमें। अल्टरनेट बॉन्डिंग बोले तो सिंगल बॉन्ड गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, वापस से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड वापस से डबल बॉन्ड। नहीं डबल समझा? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड तो वापस से डबल बॉन्ड। ये है डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके बाद और भी कुछ 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 नाम है, जैसे टोल्यून हो गया, हेलो टोल्यून, हेलो ट्यून नहीं, हेलो टोल्यून। वो एयरटेल में आता है ना हेलो ट्यून, हेलो टोल्यून। हाँ, फेनॉल चलो भारी हमारी। होगा, ओ टोल्यून, सर सर ओ नैपथलीन। टोल, हाँ, ना हो। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एटसेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ये सेकेंड था ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, थर्ड है साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर। दिख रहा है क्या? अब वापस से बुक पर ही चलेंगे। यस। हाँ, टिल वेयर आई वाज, सो दिस इज इट। इसमें कुछ एग्जांपल्स आता है, जैसे ये अल्कोहल था, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। हम्म। फॉर्मिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज, सक्रोज, these all are some of the sugars, some of the sugars that are in existence. Now comes out कि ये तो डन ना, जस्ट आई डन ना। फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrate, starch, sugar, proteins, vitamins, these all contains carbon, carbonates, carbonates and bicarbonates such as chalk, limestone, marble, calamine, washing soda। ये अभी जस्ट किए थे क्या, बेकिंग सोडा, NaCO3? ये जस्ट, अच्छा ये तो किए ही थे अभी। हो गया। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन तो डन है ना अभी। हाइड्रोकार्बन यस सर। मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, इथाइन, बेंजीन, नेफ्थलीन देख लिया। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, दिस ऑल आई हैव डन आई थिंक। वेयर अगेन इट इज द सेम पेज, ओके। नेक्स्ट comes some inorganic compounds are also there that constitute of carbon dioxide, carbon monoxide, calcium carbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट में याद रखना है सिर्फ CO3 एग्जिस्ट करेगा। बाइकार्बोनेट अगर होगा तो बाइकार्बोनेट के केस में क्या होगा, HCO3 HCO3। और सिर्फ कार्बोनेट होगा तो CO3 वो थ्री। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, CO3। उसी तरह से ये जिंक कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में देखो HCO3 आ गया, आया ना, बाइकार्बोनेट वापस से HCO3। ऑक्साइड्स ऑफ carbon, which is CO2, CO, carbonate, carbonate means CO3, bicarbonate means HCO3, belong to inorganic compounds। सीधा समझना, C और H प्रेजेंट है डेफिनेटली, तो इट इज व्हाट बेसिकली ऑर्गेनिक। और अगर कोई और है तो दैट्स व्हाट इट इज इनऑर्गेनिक। कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर, ये तो बहुत शानदार तरीके से कर दिया ना, कार्बन एटम का ये सेल्फ लिंकिंग। एक तो क्या था,
स्ट्रेट चेन दूसरा, साइक्लिक एक और था, ब्रांच चेन ब्रांच चेन। होगा। नेक्स्ट आता है अपना एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स क्या होता है, अगर एक ही चीज, एक ही सब्सटेंस है जैसे कार्बन है, अपने 3 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन सा? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस। क्या क्या बोले? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर बक। फुलरेंस। हाँ, तो these all are just the allotropes of carbon. Allotropy is defined as the phenomenon due to which an element exists in two or more form in the same physical state with identical chemical property. कार्बन है तो हर कोई कार्बन ही है ना, with different physical properties. Such forms of an element are known as allotropic forms or allotropes. Allotropes of carbon. कार्बन, एक चीज और याद रखना, the allotropes are carbon are divided into two groups. First one is crystalline allotropes and the second one is amorphous. Crystalline में खास structure exist करेगा, इसमें it is having some definite structure. It does not resemble any definite structure. Got it? It does not resemble any definite structure. Uh, they Yes, sir. These two broad types are subdivided into a number of specific allotropes. All these forms of carbon differ in their physical property, but when burnt in the presence of oxygen, they all produce. सीधा सा याद रखना, कार्बन चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या देगा? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। डाइऑक्साइड। इट इज कंफर्म्ड। साथ में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होता है। फॉस्फोरस और सल्फर, ये दोनों एलिमेंट्स भी है, एग्जाम में आता है कि नेम एनी टू एलिमेंट विच फर्दर शोस एलोट्रोपी। याद रखना, एक तो फॉस्फोरस और दूसरा सल्फर। गॉट इट? फॉस्फोरस Yes. एंड सल्फर, these are the two elements that shows allotropy behavior. इसका एग्जांपल ये, येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, सल्फर का रोम्बिक मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक कोलाइडल एंड फ्लावर ऑफ सल्फर। These are some of the well known existing allotropes of phosphorus and sulfur. क्रिस्टल क्या होता है बताओ तो, किसी को कुछ पता है क्या क्रिस्टल? क्रिस्टल is the structure of a particular element or compound in which it shows definite shape and size and it is fixed universally. So that's what we say crystal. So crystal is a homogeneous solid in which particles like atoms, molecules, ions, these are arranged in a definite pattern due to which they have a definite geometrical shape with plane surface. Example, sodium chloride, क्या बताओ क्रिस्टल है? सोडियम क्लोराइड इज व्हाट बेसिकली? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ NaCl Yes, sir. होगा। सुगर, both are crystalline with a definite cubical shape for their crystals. Cubical shape just like cube, it will resemble, देखना चीनी का दाना को उठा के देखना, ऐसा कुछ दिखेगा, दिखता है क्या? यस सर। हाँ, और ये पता है क्रिस्टलाइन होता है, मतलब आर पर, मतलब लगभग देख सकते हैं, मतलब चमकेगा, लगेगा हाँ साइन मार रहा है। So we are having basically two forms, crystalline and amorphous form. Crystalline में डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेन। amorphous form मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं हो, तो दैट केस वी हैव कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन Yes, sir. होगा। चारकोल में भी 3 तरह का, ओड चारकोल, सुगर चारकोल और बॉन चारकोल। Yes, sir. अब सवाल उठता है, सबसे पहला टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है सबसे पहले? ग्रेफाइट, एक और था बताओ? Graphite. डायमंड, दूसरा बकमिस्टर फुलरेन। ग्रेफाइट इज व्हाट? अ नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। नेचुरल ग्रेफाइट is extensively found in the mineral plumbago, a mineral of lead, in both Sri Lanka and in Siberia. In India, graphite is found in Jammu and Kashmir, Bihar, Odisha, Rajasthan and West Bengal. प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट, जस्ट कुछ मत करो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका, सिलिका जेल को उठाओ, सिलिका, जस्ट टेक थ्री एटम्स ऑफ कार्बन above 3000 degree Celsius, just you heat it, you will get here twice of Cu and SiC. Thereafter SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड को वापस से हीट करेंगे तो वापस you will get what?
silicon and carbon. This carbon is what? In burnt form. That's why we say it is graphite. That's why we say it is graphite. Great. हाँ, इसीलिए इसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। दिखेगा ये तुमको जला हुआ टाइप का। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट याद रखना। स्ट्रक्चर अगर अगर इसके कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, मतलब बाकी 3 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। एक कार्बन का, एक जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहता है, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स व्हाट? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है हर एक से, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो बताओ क्या वो कभी भी कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी को? No, नहीं कर sir. सकेगा। हाँ, so in a graphite molecules each carbon is atom is linked with 3 neighboring carbon atoms, thus forming a flat hexagonal arrangement of atoms. This hexagonal grouping of carbon atoms are arranged in layers or sheet piled one on the top, एक के बाद दूसरा ऐसे, एक के बाद दूसरा। यहाँ वाला, एक मिनट रुको, यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग दिख रहा है ना, दिस इज वीक बॉन्ड। और ये कौन सा वीक बॉन्ड है? वीक वॉन्डर वॉल फोर्स। Van der Waals force. हाँ, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस, जो कि आसानी से स्प्लिट कर जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन इजिली कट ग्रेफाइट विथ नाइफ। इट इज ब्रेकेबल ऑल्सो, होगा आसानी से ब्रेक डाउन इसका पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वीक बॉन्ड्स। इस देखो यहाँ पर हर एक जगह देखो, ये जो लॉन्ग वाला वर्टिकल वाला डायरेक्शन में जो दिख रहा है ना बॉन्डिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये ऑल आर जस्ट वॉन्डर वॉल फोर्सेस विच आर वीक बॉन्ड, सो इट कैन इजिली बी कट विथ अ नाइफ। ये पोर्शन अलग, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग, नीचे वाला पोर्शन अलग, आसानी से हो सकता है ना। ऐसा ऐसा थिन शीट, मिलियंस ऑफ थिन शीट कंपाइल्ड अप होता है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दे कैन इजिली बी कट कहीं से भी। सो ग्रेफाइट का लीड आसानी से टूट जाता है। गॉट इट और नॉट? Yes, ग्रेफाइट sir. ग्रेफाइट का लीड आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट कम्स क्या? नेक्स्ट कम्स आउट, ग्रेफाइट में एक तो खाली है, तो जिस कारण से अगर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बताओ क्या होगा उस केस में? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? जस्ट टेल मी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस these वंडर वॉल फोर्सेस ब्रेक डाउन और हर एक का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आसानी से क्या होगा? ग्रेफाइट विल बी एबल टू कंडक्ट द electricity. That's why we say Yes, sir. graphite is a best conductor of heat, not heat, electricity. दिख रहा है क्या? It is slippery and can be used as lubricant in machines and in pencil leads also. Also in a graphite molecule, one valence electron of each carbon atom remains free, thus making it a conductor of electricity. Carbon-carbon binding force is strong in graphite crystals, so the melting and boiling points are high. That's why we say melting point as well as boiling points are very much higher. Properties of graphite देखो तो क्या होगा? Graphite is a grayish black opaque substance with a metallic luster. This is the case of graphite. This is what you can watch over here. Pencil lead, graphite crucibles, you could watch out. वो जो बैटरी का जो इलेक्ट्रोड होता है ना, Yes, अरे sir. वो नहीं देखा है एवरेडी का बैटरी? बीच में देखना कार्बन रॉड इस टाइप का एग्जिस्ट करता है, ऐसे करके ऐसे। ये चारों ओर से Yes, बैटरी है और बीच में ये कार्बन रॉड एग्जिस्ट करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। negative. हाँ, तो दिस इज व्हाट इज ग्रेफाइट रॉड, और यू कैन से दिस इज कार्बन रॉड। कार्बन रॉड बट विच टाइप ऑफ कार्बन? ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन। गॉट इट? दैट्स व्हाट Yes, इज sir. ऑल अबाउट। डेंसिटी, डेंसिटी is 2.39 gram per cm cube. It is stable to heat and is very high melting point of 3700 degree Celsius. सॉफ्ट होता है, क्यों होता है? बस बिकॉज ऑफ दिस
because of this van der Waals Wonderful. forces between consecutive layers. It leaves a black mark on paper. That's why we are able to write on paper. It is a good conductor of heat and electricity. It can easily conduct heat as well as electricity. Uses of graphite तो पता होगा, lubricant के फॉर्म में due to its soft and slippery nature. Lubricant formed by mixing with petroleum and jelly which is called graphite grease. अरे ग्रीस नहीं देखा है तुम लोग? ग्रीस Yes. हम लोग डालते हैं उसमें, किसमें डालते हैं बताओ? Bike. हाँ, बाइक वगैरह में भी डालते हैं ग्रीस। बाइक के चाय में नहीं डालता है, ये बाइक में ही डाल देता है ग्रीस को। सर मशीन में उपयोग करा हाँ, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो। इलेक्ट्रोड्स भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जस्ट वही जो बताया अभी, ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। सिंस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। ये तो दिख गया। फॉर मेकिंग Yes. क्रूसिबल्स, फॉर मेल्टिंग मेटल्स ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरे मेटल को मेल्ट कराना है तो इसको यूज करते हैं। कार्बन ब्रश का यूज करते हैं हम लोग, पता है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, जस्ट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एसी करंट में, जैसे एसी जनरेटर होता है ना, उसमें हम लोग कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। पेंसिल लीड, सबको अपना अपना पेंसिल देख लो, ग्रेफाइट पाया जाता है उसमें। बिकॉज इट लिव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर। पेंसिल लीड्स आर पेपर made by mixing graphite with variable quantities of clay. These can be sharpened easily because layer of graphite crystals can slide over one another due to weak force between them. Weak कौन सा force ये नहीं लिखा? Wonderful force. Only weak Wonderful. force. It is used in nuclear reactor as a moderator to slow down the speed of neutrons. अरे बताए थे क्या, एक न्यूट्रॉन से तीन तीन न्यूट्रॉन्स निकलता है न्यूक्लियर इमिशन में, Yes. होता है ना? confirm. हाँ, उसके बाद फिर हर एक न्यूट्रॉन से तीन तीन, हर एक न्यूट्रॉन से तीन तीन न्यूट्रॉन का इजेक्शन होता है। इस तरह से ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते चले जाता है और हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस। दैट्स व्हाट वी से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस। तो टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स वी यूज इट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, फॉर मेकिंग Nuclear. आर्टिफिशियल डायमंड, मुंह उठा के इसी को टेम्परेचर से हीट करेंगे ज्यादा ना तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पता है गोल्ड स्मिथ के शॉप पर दिखाई देगा, कहता है ना वो हाँ। 3,000 में डायमंड दे देंगे। ये वही डायमंड है जो वो देता है, सस्ता के चक्कर में फंस जाता है लोग। डायमंड Yes. नेक्स्ट डे से करें क्या? आई थिंक Yes, सो। sir. हाँ, नहीं तो फिर पता चलेगा ज्यादा हो गया। Yes.